Students, let us start the topics limit part 6. In this session, we will find the limit of the function which gives the result of exponential number. So in the field of mathematics, we have a function fx is equal to 1 plus 1 by x whole to the power x, and this approaches to e when x approaches to infinite. Basically, this function is a bounded function for all values of x right from 0 to infinite except x is equal to 1. So this number is denoted as e. This also known as the Euler number. So according to this, we can write x tends to infinite 1 plus 1 by x whole to the power x, this is e, or this can be written as limit x to infinite 1 plus alpha by x whole to the power beta x plus gamma. This is your e to the power alpha and beta, where alpha, beta, gamma are the real numbers. So considering this, this is one. Second one is limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x. This is also e, or you may write x tends to 0, 1 plus alpha x beta by x plus gamma. This is also e to the power alpha beta, where alpha beta belongs to R. So these two formula can solve many functions which are in the form of this and this. So let us first take one example. That example is your limit x tends to 0, x divided by 1 plus x whole to the power x. So what is the result of this one? So if you see such type of question, आपके दिमाग में इस तरह का फॉर्मूला क्रिएट हो जाना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को आप इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. So this is can be written as x tends to infinite 1 plus x by x whole to the power minus x. Now this is your limit x tends to infinite 1 plus 1 by x whole to the power minus x. So see here, what is the value of alpha, beta and gamma? So the value of alpha is 1, simple 1. Value of beta is your minus 1 and value of gamma is 0. So the result of this function is your e to the power minus e minus 1. This should be the answer. So प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं. इसको इसी फॉर्मूला को कैरी करके आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 x प्लस 2 2x माइनस 1. इस क्वेश्चन को बनाते वक्त भी हमें इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा. तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ध्यान रहे इस तरह का फंक्शन को हमको इस 1 प्लस 1 बाई एक्स में कन्वर्ट करना होता है. तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल टू द पावर, यहाँ प्लस 1 लिखे तो माइनस 1 लिखना होगा, 2x माइनस 1. सो अगेन this can be extended as limit x tends to infinite 1 plus x plus 1 minus x minus 2 divided by x plus 2. So this is 2x plus 4 minus 5.
ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि x यहाँ कैंसिल होगा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -1 और x के जगह यहाँ पर x+2 है क्योंकि सिंस x tends to infinite, this implies x+2 also tends to infinite और इसको लिखा जा सकता है लिमिट x+2 tends to infinite 1 plus -1 x+2. Now this is take 2 कॉमन, 2 कॉमन आने पर इस फॉर्म में होगा -5. Now see x के जगह हो गया x+2, अल्फा के जगह हो गया -1, बीटा के जगह हो गया 2, गामा के जगह हो -5. सो इसका आंसर होना चाहिए e⁻². So this is the solution. Now take 2 more questions. That is question number 3. Question number 3. Evaluate limit x tends to 0 cos x pi divided by cos x -1. यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला के तहत बन रहा है. तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा x tends to 0 1 plus cos x -1 whole to the power pi divided by cos x -1. Cos 0 this is 1 तो 1 - 1 0 और यहाँ पर भी cos -1 ये दोनों सेम आ गया. यहाँ लिख सकते हैं सिंस x tends to 0 this implies cos x -1 also tends to 0. So from formula number 2 यहाँ पर देखिए what is the value of alpha, this is 1, beta is your pi, so the limiting value of this one is your e⁻². This is the answer. Now take one more question from this exercise, from this, that is evaluate limit x tends to infinite, 0, 1 plus 7x square by 1 plus 3x square whole to the power 2 by, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर e⁻², और ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए पहले तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ दें. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 7x स्क्वायर होल टू द पावर 1 by 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 3x स्क्वायर होल टू द पावर 1 2x स्क्वायर. तो सिंस x टेंड्स टू 0 सो x स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो इस x को आप x स्क्वायर लिख सकते हैं. और फॉर्मूला के अनुसार अल्फा के जगह हो गया 7, बीटा के जगह हो गया 1 by 2, यहाँ अल्फा के जगह हो गया 3, बीटा के जगह 1 by 2. तो इसका आंसर जो होगा e⁻7 by 2 divided by e⁻3 by 2. So e⁻7 minus 2 divided by 2, this is e का whole square. So this should be the answer. एक टेक्निक और है एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए. हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. So evaluate limit x tends to infinite x to the power 1 by x. प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो इसको आप ब्रेक कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर log e x 1 by x. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. तब ये हो जाएगा लिमिट e को आप यहाँ ले आएंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by x log बेस e
x. Now since x tends to infinite, this implies 1 by x tends to 0. So इसका जो 1 by x का जो यहाँ पर वैल्यू है, this value 1 by x, this is your 0. So limit इसका जो वैल्यू होगा, this is what? 0 लिख दीजिए. दिस इज द आंसर. सॉरी, यहाँ पर e है, e टू द पावर 0. सो दिस इज योर 1. दिस इज द आंसर. चलिए और कुछ फॉर्मूला का हम लोग डिस्कशन कर ले यहाँ पर. दैट इज फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसको मिटा दिया जाए. Now, that is formula number 1. Limit x tends to 0, log 1 plus alpha x divided by x. This is your alpha. Dear students, यहाँ पर अगर हम log लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस e हम छोड़ रहे हैं, and this is equal to ln x. कैलकुलस में जब भी लॉगरिथम का कंसेप्ट आती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए, वी ऑलवेज यूज द नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज ln x. किसी भी लॉगरिथम का बेस में अगर एक्सपोनेंशियल नंबर है तो उस लॉगरिथम को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं. जैसे अगर हम लिखेंगे log ax, a नॉट इज इक्वल टू e, इस लॉगरिथम को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. इसको याद रखिएगा. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर अल्फा x माइनस 1 बाई x. दिस इज अल्फा ln a. यहाँ पर भी आप ln का यूज कर सकते हैं, यहाँ log का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बेस में e रहना चाहिए. और लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power alpha x minus 1 by x. This is your alpha. ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए. चलिए इसको पहले प्रूफ किया जाए. प्रूफ नंबर 1, इसको लिखने से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस अल्फा x टू द पावर 1 by x. अब ये log को आप बाहर ले आइए. log बाहर आ गया. लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते थे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है. इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई x log 1 प्लस अल्फा x. सो दिस इज योर, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखे, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. log को सिर्फ बाहर लाइए. log बेस e लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस अल्फा x होल टू द पावर 1 बाई x. तो इसका जो वैल्यू है दैट इज e टू द पावर अल्फा. तो दिस इज log e टू द पावर अल्फा. इसका वैल्यू हो गया 1. तो दिस इज योर अल्फा. तो ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को आप याद रखिए. इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन हम लोग बना लें. एक क्वेश्चन यहां से हम लोग बना लिया जाए. चलिए पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं. पहले हम लोग प्रूफ कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन इसका सॉर्ट आउट करेंगे. नाउ प्रूफ नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर अल्फा x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू अल्फा log a. इसको हम लोग प्रूफ करें पहले. और इसको प्रूफ करने से पहले इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रूफ करते हैं. हम किसी फंक्शन के बदले एक दूसरा फंक्शन लेते हैं. जैसे यहाँ पर LHS में लेट y इक्वल टू a टू द पावर अल्फा x माइनस 1, इसके जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. और सिंस x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर अगर आप 0 बैठाइएगा तो a टू द पावर 0 होगा. और a टू द पावर 0 का वैल्यू 1, सो 1 माइनस 1 हो गया 0. देयरफॉर दिस इंप्लाइज y आल्सो टेंड्स टू 0.
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको x को आगे लाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। दिस इज इसको पहले log लेने से पहले इसको इंडिपेंड करना होगा। दिस इज a अल्फा x, दिस इज y प्लस 1। नाउ यू टेक द लॉगिकम, दैट इज log a अल्फा x इज इक्वल टू log y प्लस 1। So this is alpha x log a is equal to log y plus 1. So what is the value of x here? So x is equal to log y plus 1 divided by alpha log a. अब x के जगह इसको बैठाया जाए और इसके जगह इसको सेट किया जाए और a टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 की जगह 1 बैठा दिया जाए। सो l हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, इसके जगह y बैठा दिए और जब यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो ये टर्म ऊपर आएगा अल्फा लॉग ए डिवाइडेड बाय दिस वन log 1 plus 1. So this is your यहां से इसको कॉमन ले लीजिए, अल्फा लॉग ए को बाहर लाइए, अल्फा लॉग ए और लिमिट y टेंस टू 0, इसको ऊपर ले जाइए log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय y का इनवर्स कर देंगे ना। see here the value of alpha is 1, तो ये पूरा का लिमिट हो जाएगा 1 का पावर इनवर्स। सो 1 का इनवर्स 1 होगा। सो दिस इज अल्फा लॉग ए 1 का इनवर्स। सो दिस इज योर व्हाट अल्फा लॉग ए, दिस इज RHS। और फॉर्मूला नंबर 3 में अगर आप ए के जगह फॉर्मूला नंबर 3 में पुट in the place of a, that is e, तो नेचुरली यहाँ पर e हो जाएगा और log e that is 1. so these are the formulas. यहाँ से एक दो क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं. now write down question number I think this is 5 or 6. evaluate limit x tends to 0 log a plus 3x minus log a divided by x. तो इसको कैसे लिखेंगे आप? लिमिट x टेंस टू 0 log 3a plus 3x divided by a, this divided by x. So this is limit x tends to 0, a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 plus 3x divided by a divided by x. Now see what is the value of alpha here? The value of alpha is 3 divided by a. So a जो लिमिट है, so l is equal to 3 by a. This is the answer. बहुत सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला के आधार पर ही आपको फंक्शन को सेट कर देना है और अल्फा बीटा गामा निकाल के उसका आंसर को डाल देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x 25 टू द पावर x 125 टू द पावर x 625 to the power x minus 4 divided by x. चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए. सो इसको बनाने से पहले आप फॉर्मूला नंबर 2 याद कर लीजिए, a टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 उस फॉर्म में. तो इसको आप को एडजस्ट करना होगा 5 टू द पावर एक्स के साथ -1, यहाँ पर -4 है और 4 ठो टर्म है, तो हर ग्रुप में इसको आप अलग अलग कर दीजिए. 25 5 स्क्वायर 3 125 5 3x 3 टू द पावर x और ये हो गया आपका 5 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई
x। अब ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 to the power x minus this is plus limit x tends to 0 5 to x minus 1 by x plus limit x tends to 0 5 3x minus 1 by x। इस तरह से इसको आप एडजस्ट करेंगे और लास्ट में कितना होगा इसका प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 5 4x minus 1 by x। तो इसका a के जगह 5 सब में है, यहाँ पर अल्फा के जगह 1, अल्फा के जगह 2, अल्फा के जगह 3, अल्फा के जगह 4। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज log 5 प्लस 2 log 5 प्लस 3 log 5 प्लस 4 log 5। अगेन दिस वन इज टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 3 7 2 9 और 1 10 10 log 5। दिस इज द आंसर। और इसको आप लिख सकते हैं log 5 होल टू द पावर 10। सो प्यारे बच्चों, ये लिमिट का आखिरी पड़ाव था। अब जो हम 2 या 3 एपिसोड बनाएंगे लिमिट का, वो आपका जेईई मेन और एडवांस को कैरी करेगा। फिलहाल हम जेईई मेन और एडवांस का क्लास को ब्रेक किए हैं। पॉलिनोमियल का एक ही पार्ट्स बनाए हैं। हम सोच रहे हैं कि पहले कैलकुलस खत्म कर लिया जाए, इसके बाद हम फिर से पॉलिनोमियल का स्टार्ट करेंगे जो प्योरली आईआईटी मेन और एडवांस के लिए होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।